ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنایا۔ اللہ رب الجلال ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، اور آپ کی تمام کوششیں، کاوشیں اور جو سعی آپ کر رہے ہیں، اللہ پاک اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے فیض کو جاری و ساری فرمائے۔ آمین۔ صلی بسم اللہ۔ اللہ علیہ یا یا رسول رسول اللہ اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ ثنا مصطفیٰ کی، ثنا مصطفیٰ کی، جدھر ہو رہی ہے، ثنا مصطفیٰ کی، ثنا مصطفیٰ کی، جدھر ہو رہی ہے، ثنا مصطفیٰ کی، جدھر ہو رہی ہے، ثنا مصطفیٰ کی، جدھر ہو رہی ہے، وہیں رحمتوں کی نظر ہو رہی ہے، وہیں اللہ رحمتوں کی نظر ہو رہی ہے، ثنا مصطفیٰ کی۔ بھلوں پر ہے نظر عنایت نبی کی، بھلوں پر ہے نظر عنایت نبی کی، بھلوں پر ہے نظر عنایت نبی کی، بروں پر بھی رحمت مگر ہو رہی ہے، بروں پر اللہ اللہ بھی رحمت، اللہ بھلوں پر ہے نظر عنایت نبی کی، بھلوں پر ہے نظر عنایت نبی کی، بھلوں پر ہے نظر عنایت نبی کی، بروں پر بھی رحمت مگر ہو رہی ہے، ثنا مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شب و روز کھاتے ہیں صدقہ نبی کا، 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 نبی ہی کے صدقے، نبی ہی کے صدقے گزر ہو رہی ہے، نبی ہی کے صدقے گزر ہو رہی ہے، ثنا مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ پھیلے نبی جو بھی مانگی دعائیں، تو پھیلے
نبی جو بھی مانگی دعائیں، تو پھیلے نبی جو بھی مانگی دعائیں، وہی اب دعا پر اثر ہو رہی ہے، وہی اب دعا پر اثر ہو رہی ہے، ثنا مصطفیٰ کی، ثنا مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے، ثنا مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے، ثنا مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے، وہیں رحمتوں کی نظر ہو رہی ہے، ثنا مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، اللہ آپ کے ذوق میں اور زیادہ عروج و بلندیاں عطا فرمائے۔ شوق صاحب، اللہم ایک آمین۔ خواہش ہے آپ سے کہ قصیدہ بردہ شریف کے 2 بول اور سنا دیں، پھر انشاءاللہ جی حیدر جی بابا سے پھر ایک نعتیہ جی کلام سنیں جی گے۔ جی۔ ہاں، بسم اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، علی حبیبک خیر خلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین، من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں اللہ خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی سبحان اللہ، اترے نہ تھے جبریل بھی کعبے کے منبر سے، ابھی اترے نہ تھے جبریل بھی کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہ کے گھر مبارک ہو، شہ کون و مکان تشریف لے آئے ہو، سبحان اللہ، الحبیب الذی ترجی شفاعتہ، هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے سبحان اللہ، دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہے غم، عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، سبحان اللہ، عرض کی جبریل نے اے
شاہدی محترم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی۔ یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے جی، بہت ساری عزت سے نوازے اللہ سے۔ اللہم آمین، اللہم بہت آمین۔ ساری دعائیں جی آپ کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ چلے جی حیدر بابا بہت سے شکریہ۔ جی، جی بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ حیدر بابا سے ریکویسٹ ہے جی وہ بھی اپنا حصہ ڈالے جی، 2 بول ہمیں نعتیہ کلام کے سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرکار قدم وسی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی، میرا بیٹا بسم اللہ کریں۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، اللہ سمندر ہے جس کا انارہ نہیں، حشر کے دن جی وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، اللہ حق نے اللہ محبوب سے اپنے فرما دیا، حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، کیا گری ہوگی محشر کے دن سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، ہوگی سب کی زباں پہ یہی ایک صدا، ہوگی سب کی زباں پہ یہی ایک صدا، کہ مصطفیٰ کے سوا کوئی چاہت نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ اللہ، سمندر ہے جس کا انارہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع طریقت ہے، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے، چونکہ وقت تو بڑا قلیل ہوتا ہے، یہ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہم نے مختصر سے اپنے محفل کے وقت میں کسی ایک موضوع پر تھوڑی سی بات، تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہوتی ہے، تو آج کا جو موضوع ہے وہ طریقت ہے۔ جیسے طریقت ہے اسی طرح شریعت بھی ہے، لیکن طریقت کی وابستگی، طریقت کا تعلق اہل اللہ سے ہے، اللہ کے بندوں سے۔ 4 مین اسکول آف تھاٹس ہیں جو طریقت کے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، برانچز بھی ہیں، آگے برانچز کے آگے حلقے ہیں، تو جو مین اسکول آف تھاٹ ہیں وہ 4 ہیں: سلسلہ نقشبندی عالیہ شریف، سلسلہ چشتی عالیہ شریف، سلسلہ قادری عالیہ شریف، اور سلسلہ سہروردی عالیہ شریف۔
जो सिलसिला नक्शबंदी आलिया शरीफ है वो हजरत बहाउद्दीन शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला से उसका ताल्लुक है, वाबस्तगी है। आपसे ये सिलसिला पहचाना गया, आपसे इसका नाम पड़ा इस सिलसिले का। इसी तरह सिलसिला चिश्ती आलिया शरीफ, हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला, आप इस सिलसिले के पेशवा हैं, आपसे इस सिलसिले का नाम रखा गया। फिर सिलसिला कादरिया आलिया शरीफ है, हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह ताला, आप सिलसिला कादरिया के पेशवा हैं, आपसे आकर इस सिलसिले का एक नाम पड़ा, इसको नाम दिया गया। इसी तरह सोहरवर्दी आलिया शरीफ है, हजूर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला, आपके नाम पर हजूर शेख उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी है। वहां से आके ये सिलसिला तरीकत एक नाम पा गया। तो इस तरह से ये 4 सलासिल हैं। बहुत सारे लोग इस बात पर कंफ्यूज्ड हैं कि भाई ये कुछ मशाइख ने मिलकर एक नया नसाब, एक नया सिलसिला तरीकत, एक नई रविश शायद कोई कायम कर ली है। बहुत सारे सख्त तबीयत, सख्त मिजाज लोग माज़अल्लाह सख्त अल्फाज भी कहते हैं शायद ये कोई बिद्दत शुरू कर दी इन्होंने, कोई खुदा न खास्ता कोई शिरक शुरू कर दिया, अस्तग़फिरुल्लाह। बहुत सारे लोग अपनी अक्ल व दानिश के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक गलत गलत भी सख्त लफ्ज भी बोल जाते हैं। अल्लाह पाक उनकी हालत पर भी रहम फरमाए। मकसद किसी को तनकीद करना नहीं है, मकसद तरीकत पर थोड़ी बात करना है ताकि हम थोड़ा सा इस पर इल्म हासिल कर ले, हमें नॉलेज हो जाए कि हाँ भाई ये सिलसिला तरीकत जो है ये क्या है और कहाँ से चले, कहाँ से ये मार्ज़े वजूद में आई, या कहाँ से इनकी तालीमात शुरू हुई, या कहाँ से इनके नसाब जो हैं वो कायम किए गए। सिर्फ इस बात को उजागर करना है। हकीकत ये है कि ये जो सिलसिले हैं बेशक इनको नाम इन बुजुर्गों की निस्बत से दिया गया, लेकिन हकीकत में ये सिलसिलों के मालिक नहीं हैं कि हम कहें जी अच्छा जी इन्होंने कोई नसाब इंट्रोड्यूस कराया या इन्होंने कोई नई बात लोगों तक पहुंचाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जाहिर बात है हजूर बहाउद्दीन शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला भी आप अपने शेख से बैत थे। इसी तरह हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह भी अपने शेख से बैत थे। इसी तरह हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह ताला भी अपने शेख के पास बैत। इसी तरह हजूर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला। भाई अगर ये पेशवा हैं तो फिर इनको किसी और से बैत लेने की क्या जरूरत है, इल्म सीखने की क्या जरूरत? भाई वो तो फाउंडर होते। हालांकि ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने अर्लियर ये बात कही कि इन बुजुर्गों से आके इन सिलसिलों को नाम दिया गया, बस इतना फर्क है, ये नुक्ता समझ लें। इन बुजुर्गों से आके इन सिलसिलों को नाम दिया गया। दर हकीकत ये सिलसिला तरीकत सारे के सारे, इनके नसाब भी, इनके असबाक भी, इनके औराद भी, इनका फैज भी, इनकी निस्बत भी, सारी की सारी आपके और मेरे आका और मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। ये सारे सबक सरकार मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आगे असहाबा को अता फरमाए, हजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाए, हजूर मौला अली करमल्ला वजहुल करीम को अता फरमाए। ये जो बातनी निज़ाम था, ये जो रूहानी सिलसिले थे, ये जो सिलसिला तरीकत थे, इनके जितने भी औरादो वज़ाइफ और असबाक थे, ये सारे के सारे आपके और मेरे आका और मौला हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए। आपने ये सबक दिए, आपने इन असबाक की प्रैक्टिस कराई है सहाबा को। हाँ, चूंकि सिलसिला तरीकत खास रहे हैं, हमेशा हर दौर में खास रहे हैं, क्योंकि हर बंदा तरीकत का पैरोकार नहीं होता।
अहलुल्लाह जितने भी रहे हैं हमेशा से अपने दौर में कलील रहे हैं, कभी जंबे गफीर नहीं बने। चंद अल्लाह के खास दोस्त, खास वली, अहले तरीकत, अहलुल्लाह रहे हर दौर में, हर दौर में। तो ये सिलसिले सारे के सारे, ये सबक सारे के सारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चले, और फिर ये सिलसिला ब सिलसिला, निस्बत ब निस्बत चलते 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 पीराने कबार तक आए, जहां से इनको नाम मिले। पीराने कबार यही 4 बुजुर्गान दीन जिनका मैंने नाम लिया, वहां तक आए तो फिर इन सिलसिलों को नाम दिया गया, तरतीब दी गई, इनके असबाक मुरतब किए गए कि कौन सा सबक पहले है, कौन सा बाद में है। फिर हजूर इमाम रबानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला ने, जब अल्लाह ने बहुत करम उन पर किया और आका जी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास मोहब्बत और शफकत और फैज़ान बख्शा, तो फिर आपने इन तमाम असबाक के मकाम भी बताए, उनके फैज़ बरक़ात के रंग भी बताए, उन पर मुरतब होने वाली कैफियत भी बताई, और फिर आपने अपने जितने भी मुरीदीन हैं उनको इसका इल्म सिखाया। और बहुत सारे अहले तरीकत आज भी आपकी लिखी हुई कुतुब, आपने नहीं लिखी बल्कि इसको थोड़ी सी तरमीम कर लेते हैं, करेक्शन कर लेते हैं, आपके जितने भी लिखे हुए मकतूबात हैं, खत हैं जितने, जो आप मुख्तलिफ मुरीदीन को, खुलफा को, अहले तरीकत को, बुजुर्गान दीन को लिखा करते थे, वो सारे के सारे खत आपके मुरीदीन ने, आपके खुलफा ने इकट्ठे करके उनका नाम किताब का रख दिया, मकतूबात शरीफ। तो आज भी जो अहलुल्लाह हैं, आज भी जो तिफल मकतब हैं, आज भी जो बुजुर्गान दीन हैं, आज भी जो सालिकीन हैं, वो सब के सब आज भी उनकी उन कुतुब से, मकतूबात शरीफ से मुस्तफीद होते हैं, आज भी मुस्तफीद होते हैं। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये जो सिलसिले हैं ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और वहीं से चले। हाँ, प्रैक्टिस उस वक्त भी थी साहबा के दौर में, ताबाइन के दौर में, तबा ताबाइन के दौर में, तमाम जमानों में इन जो तरीकत के जो क्या कहना चाहिए शयूख हैं, उन्होंने इसकी प्रैक्टिस की, ना सिर्फ की बल्कि उसकी तालीमात आगे दी, आगे खिलाफतें दी, आगे अपने खलीफा मुकर्रर किए, अपने बाद अपने जानशीन मुकर्रर किए, और हमेशा से ये सिलसिला चलता 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 आज हम तक पहुंचा। हाँ, जो ये दूसरे लोगों को बातें करने का मौका मिल गया, उसमें हमारा अपना कसूर है, हमारी अपनी कमजोरियां हैं। भाई कैसे कमजोरी हो गई? अच्छा, वो कमजोरी ऐसे आ गई कि मैं अगर मिसाल दे के बात कर रहा हूं, मैंने अगर सिलसिला कादरी आलिया शरीफ में बैत इख्तियार की, किसी सिलसिला कादरी आलिया शरीफ के शेख से बैत ली, फैज लिया, सबक लिया, तो मैंने अपने नाम के साथ फौरन लिख दिया सूफी मंसूर कादरी। जो सिलसिला चिश्तिया में बैत हुआ, उसने कहा जी सूफी मंसूर चिश्ती, किसी ने सोहरवर्दी लिख दिया, किसी ने नक्शबंदी लिख दिया। हाँ भाई, अच्छी बात है, लिख लो क्योंकि तुम उस सिलसिले में बैत हो, लेकिन ये तो बताओ उस सिलसिले के असबाक कितने हैं, लताइफ कितने हैं, क्या क्या सबक हैं, उनके मकाम क्या हैं, किन अंबियाओं से निस्बत है उनकी। दे को यहाँ के कमजोरी आ गई, यहाँ के खराबी आ गई। हमें पता ही नहीं है कि सिलसिला नक्शबंदिया आलिया शरीफ के कितने सबक हैं, कितने लताइफ हैं, कितने मुराकबात हैं, कितने औराद हैं, तो हम अपने नाम के साथ नक्शबंदी लिख के घूम रहे। अच्छा, ज़ाहरी मिसाल देता हूँ, भाई अगर आपने मेडिकल में दाखिला लिया है तो क्या आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ये जुर्म है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब आप डॉक्टर नहीं हो गए कि आप अपने नाम के साथ DR लिख लें, और अगर लिख लिया तो इसका मतलब आप जुर्म है, आप मुजरिम है। क्यों? अभी आपने मेडिकल पूरी पढ़ी नहीं है, अभी आप तिफले मकतब हैं,
ابھی آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے نہیں ہیں, ابھی آپ نے امتحان نہیں دیا ڈاکٹری کا, ابھی آپ کے پاس وہ ڈگری, وہ سند, وہ سرٹیفکیٹ ابھی آپ کو نہیں ملا کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں, تو آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر کیسے لکھیں گے؟ نہیں پتا نا آپ کو میڈیکل کا, اس لیے نہیں لکھ سکتے. نہیں ہے نا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ, اس لیے آپ نہیں لکھ سکتے. اسی طرح اگر آپ سلسلہ نقشبندیہ عالیہ شریف کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے بیعت اختیار کی, تو بھائی احتیاط کرو, اپنے نام کے ساتھ نقشبندی نہ لکھو. کیوں؟ ابھی تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں اس طریقت کے, ابھی تو آپ نے سبق پورے کیے بھی نہیں ہیں, ابھی تو آپ کو ارشاد خط ملا بھی نہیں ہے, ابھی تو آپ نے ٹیسٹ دیا بھی نہیں ہے. تو جب کوئی پوچھے گا تو کیا بتائیں گے آپ کسی کو کہ بھی نقشبندیہ عالیہ شریف کے کتنے سبق ہیں؟ اچھا, ایک اور بات, یہ جتنے بھی اہل طریقت ہیں, میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا, نہ ہی کسی کی نندا کر رہا ہوں, خدا را صرف بات سمجھانے کے لیے ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں. جتنے بھی اہل طریقت ہیں, جتنے بھی, سب کی میں بات کر رہا ہوں مجموعی طور پر, جتنے بھی اہل طریقت ہیں ان میں سے 90% لوگ وہ ہیں جن کو ایون نصاب کا بھی نہیں پتا. نصاب کہتے ہیں بھی, مثال کے طور پر میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو کون کون سی میڈیکل کی بکیں ہیں جو مجھے پڑھنی چاہیے. میں ڈاکٹر میں اگر RMP بن رہا ہوں تو مجھے کون سا ساتھ اضافی بک پڑھنی پڑے گی. اگر میں ڈاکٹر بن رہا ہوں لیکن اس میں سرجن بننا چاہ رہا ہوں تو مجھے کون سی اضافی بکیں پڑھنی چاہیے. آگے بھی برانچیں ہیں نا اس کی شاخیں. اسی طرح بھائی میں اگر سلسلہ نقشبندیہ کا شیخ ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے نا کہ کون سا نصاب ہے جس کی میں نے خود بھی پریکٹس کرنی ہے, جس کے علم پر میں نے بھی عبور حاصل کرنا ہے, اور جو میرے آگے مریدین ہیں, سالکین ہیں, جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, سائل ہیں, میں ان کو اسی کے سبق کی پریکٹس کراؤں, ان کو سبق دوں بھی اور ان سے پریکٹس بھی کرواؤں. جب مجھے ہی نہیں پتا کہ سلسلہ نقشبندیہ عالیہ شریف کے کیا اوراد ہیں, تو میں آگے کسی کو کیا پریکٹس کراؤں گا, کیا سبق دوں گا؟ جب میں اس کی پریکٹس میں خود ہی نہیں ہوں تو میں آگے کسی کو کیا دوں گا؟ لہذا 90% اہل طریقت, I'm sorry, with all due respect, میں کسی کی نندا نہیں کر رہا, پھر کہہ رہا ہوں 90% سلسلوں کے جو پیشوا ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اوراد کیا ہیں, اسباق کیا ہیں, نصاب کیا ہے. اچھا بھی 10% وہ لوگ تو ہیں جن کو پتا ہے, ہاں جی بالکل پتا ہے. یہ ریشو میری دی ہوئی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, اس لیے پلیز فارگیو می. بھئی 10% وہ لوگ ہیں جن کو پتا ہے, اوکے فیئر انف, خبر ہے کہ یہ سبق ہیں, لیکن ان میں بھی 5% وہ لوگ ہیں جو اس کی پریکٹس میں نہیں ہے, نہ خود کرتے ہیں نہ مریدوں کو کراتے ہیں. علم ہے, نالج ہے, لیکن نہ پریکٹس خود کرتے ہیں نہ آگے مریدوں کو کراتے ہیں. بھئی خالی علم ہو, پریکٹس نہ ہو, عمل نہ ہو, تو کوئی علم فائدہ دیتا؟ نہیں دیتا. اب 5% اور رہ گئے. اچھا بھی ان کو علم بھی ہے, وہ پریکٹس بھی کرتے ہیں, لیکن وہ آگے ایسے ہی ہر ایک کو نہیں بانٹتے, ہاتھ کھینچ کے رکھتے ہیں. ہاں, جو واقعی طلب مولا میں جی رہا ہے, وہ واقعی جو دین حق پر چل رہا ہے, جو خاص لوگ ہیں, بس ان کو وہ 1 2 سبق 4 سبق ان کو دے دیتے ہیں, سب کچھ پھر بھی نہیں بتاتے. بہت کم لوگ, 1% شاید میں بھی لوگ ایسے ہیں جن کو علم ہے اسباق کا, جو خود اس کی پریکٹس کرتے ہیں, روزانہ اپنے اسباق کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, 2-3 گھنٹے اللہ کی یاد میں بیٹھتے ہیں اور اپنے سارے اوراد و وظائف کرتے ہیں, اور پھر وہ آگے اپنے مریدین کو بھی, اپنے سائلین کو بھی, اپنے جو محبت والے قریب آ کے بیٹھ جائیں ان کو بھی
फिर वो आगे सखावत करते हैं, देते हैं। आज वक्त की किल्लत के बायस मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक सिलसिले का सिर्फ और आधा आपको बताता हूं। आज सिलसिला नक्शबंदी आलिया शरीफ, इसके 7 असबाक हैं, 7 सबक हैं जो लताइफ पर मबनी हैं। लताइफ, लतीफ़ा कल्ब, लतीफ़ा रूह, सिरी, खफी, अखफा, 5 आलम अमर के, नफसी और कालबी आलम खलक के। कालबी जो है वो 4 अनासर का मुरक्कब है, आग, पानी, हवा और मिट्टी। सो इस मुनासबत से वो 4 अनासर और एक लतीफ़ा नफसी 5 हुए। तो इस मुनासबत से 5 लताइफ आलम अमर के और 5 लताइफ आलम खलक के काउंट होते हैं। लेकिन टेक्निकली ये 5-5 हैं, एक्चुअली ये 7 हैं, 2 आलम खलक के और 5 आलम अमर के। ये 7 लताइफ के बाद जो सबक मिलता है वो नफी असबात का मिलता है। नफी क्या है? ला इलाहा। असबात क्या है? इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा तैयबा। सो नफी असबात का 8वां सबक है। फिर उसके बाद 36 मुराकबात हैं, 36 मुराकबात। फिर ये सिलसिला नक्शबंदी आलिया शरीफ मुकम्मल होता है। और जब मुकम्मल होता है तो फिर ज्यादा लोगों को तो नहीं, मैंने तो एक ही सिलसिले को देखा है जो रिटन सर्टिफिकेट लिखा हुआ कि हाँ आप अहले तरीकत हैं, आप तरीकत के शेख हैं, आपने ये सिलसिला नक्शबंदी आलिया शरीफ मुकम्मल कर लिया है, अब आपको इस पर पूरा अबूर है, अब आपको इज़्न दिया जाता है, इजाजत दी जाती है, इरशाद खत दिया जाता है, अब आप आगे जाके जिसको चाहें ये सिलसिले के सारे सबक सिखाएं भी, पढ़ाएं भी, समझाएं भी और कराएं भी। अल्लाह अकबर। कितने लोग हैं जिनके पास तरीकत का सर्टिफिकेट है। इसको इरशाद खत कहते हैं। इरशाद का मतलब इज़्न किया गया, इरशाद किया गया, बता दिया गया, कह दिया गया, दे दिया गया। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से सिर्फ इरशाद होता है। हाँ भी जाओ, ये सिलसिला आपका है। इरशाद, सिर्फ इरशाद, इज़्न, इजाजत, और वही काफी है। अल्लाह करे, मैं दुआ गो हूं, आप सबके लिए दुआ गो हूं, अल्लाह करे कि आप सारे के सारे साहिब इरशाद हों। अल्लाह करे कि आप सारे के सारे सिलसिलों के शेख बने। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़। अल्लाह के एहसान से और मेरे आका जी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वसीले से और पीराने कबार की खास मोहब्बत और शफकत से और मेरे मुर्शिदों की अनथक मेहनत और दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ मेरे पास सिलसिला नक्शबंदी आलिया शरीफ का भी इरशाद खाता है, सिलसिला चिश्ती आलिया शरीफ का भी इरशाद खाता है, सिलसिला कादरी आलिया शरीफ का भी इरशाद खाता है, सिलसिला सोहरवर्दिया आलिया शरीफ का भी इरशाद खाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन चारों के बाद जो तकमील होती है, इन चारों के ऊपर भी एक अथॉरिटी है एक और इरशाद खाता है, 5वां से तकमील कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकमील का भी इरशाद खाता है। अल्लाह के एहसान से खास करम हुआ, हम शुक्र ना करें? कितनी शुक्रगुजारी हमें करनी चाहिए, बेइंतहा। हर वक्त सजदे में पढ़ के उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए, हर वक्त उसके नाम के चर्चे करते रहना चाहिए, हर वक्त उसकी हम्दो सना करते रहना चाहिए। इतना बड़ा करम, इतना बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हमारे अंदर बड़ी कमजोरियां हैं, बीइंग इंसान बड़ी कमजोरियां हैं, बड़ी खताएं हैं, बड़ी कोताहियां हैं, बड़ी कजरवियां हैं, बड़ी कुदूरतें हैं। ये जो
प्रैक्टिस है इस्लाम की, ये जो प्रैक्टिस है दीन की, ये जो प्रैक्टिस है जिक्र अज़कार और महाफिल की, ये करते ही रहना है। क्यों? क्योंकि लताइफ के ऊपर गद्दो गुबार आता रहता है, आता ही रहता है, हर वक्त आता रहता है। कभी नजर बद का आता है, कभी कुदूरतों और गफलतों का आता है। इसकी सादा सी मिसाल है भाई, आपके मोबाइल में अगर इंटरनेट है या आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है और आप गूगल पे या याहू पे या कहीं भी किसी भी सर्च इंजन पर जाके जब आप बहुत सारी चीजें डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारी कुकीज आती हैं, बहुत सारे वायरसेस आते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम उसको रिफ्रेश करते हैं, हम एंटी वायरस उसमें डालते हैं ताकि ये सारी कुकीज, सारे वायरस रिड ऑफ हो जाएं, डिलीट हो जाएं। इसी तरह अगर कोई बाहर जाए तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, गर्दो गुबार आ जाता है, कॉलर गंदे हो जाते हैं, चेहरे पे धूल आ जाती है। हम क्या करते हैं, घर आके फिर हाथ पांव धोते हैं, कपड़े बदलते हैं, फिर साफ सुथरे हो जाते हैं। इसी तरह लताइफ पर भी बहुत सारी गर्दो गुबार और धूल आती है और हमें मुसलसल इसको साफ करते, इसको धोते रहना चाहिए। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको अपने लताइफ को पाकीज़गी, परहेजगारी, तकवे की तरफ, कुलूबो इज़हाम को रोशनी की तरफ, नूर की तरफ, साफ सुथरा और उजला होने की तरफ लेके जाना है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी है, ना सिर्फ करनी है बल्कि करते ही रहनी है। शैतान बदबख्त पीछा छोड़ता है हमारा? नहीं छोड़ता। वो अपनी बेईमानी का काम बड़ी ईमानदारी से करता है। नफ्स छोड़ता है हमारा पीछा? नहीं छोड़ता। हर दम वर्गलाता है, हर लम्हे वर्गलाता है, हर रोज वर्गलाता है। तो जब ये दोनों हमें नहीं छोड़ते तो भाई हम अपने हक की बात, अपने रब की बात करना क्यों छोड़ दें? उसकी बारगाह में क़याम और रुकू और सजदे करने क्यों छोड़ दें? उसकी याद में बैठकर उसका जिक्र करना क्यों छोड़ दें? उसके महबूब पर दरूद पढ़ना क्यों छोड़ दें? जबकि अल्लाह फरमाता है मैं और मेरे फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दरूदो सलाम भेजा करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस हर वक्त नेकोकारी, परहेजगारी, नमाज, जिक्र, तस्बीहात, मामूलात, कुरान की तिलावत, बस इस काम में लगे रहना। इसी में बचत है, इसी में फायदा है, इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको कामयाबी अता फरमाए। थोड़ा जिक्र करते हैं जी, फिर उसके बाद मुख्तसर सी दुआ होगी। यार अल्लाहु जल्ला जल्ला, अल्लाहु, 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 अल्लाहु जल्ला जलालुहु। ला इलाहा इल्लल्लाहु, 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्ली अला
मोहम्मद सल्ले अला, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बे जुल जलाल मालिकुल कुद्दूस, तेरा जिक्र किया, हक अदा तो नहीं कर सके, थोड़ा किया है, तू ज्यादा करके कबूल फरमा। तू हमें तौफीक बख्श दे कि हम तेरा बहुत सारा जिक्र करें। बेशक सब तौफीकें तेरी पास हैं। अल्लाह हम पर अपना खास लुत्फ व करम अता फरमा। मेरे तमाम साथियों पर, मेरे भाइयों पर, मेरे बच्चों पर, मेरी बहनों पर, मेरी बेटियों पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर, जवानों पर, मर्दों पर, औरतों पर, सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। खासुल खास एहसान फरमा अल्लाह, अपने महबूब के सदके वसीले से। जिस तरह तूने मुझ पर करम किया है, अल्लाह इन सब पर भी करम कर दे। जो तूने मुझे अता किया है, अल्लाह उससे भी ज्यादा इनको अता कर दे। इनके सीनों को रोशन कर दे, इनके लताइफ को अरूज बख्श दे, कुलूबो इज़हाम को पाकीज़ा व मुनज़्ज़ा कर दे, नूरुल अला नूर कर दे। इनके दिलों को अल्लाह अपने नूर का मस्कन बना दे, अपनी तजल्लियात का नज़ूल व ज़हूर कर दे। इनके दिलों को अल्लाह तू अपना 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 अर्श बना ले। ऐसा करम अता फरमा, खासुल खास करम। इल्म लदुन्नी जैसे इल्म से नवाज दे, इसमें आजम से नवाज दे। अल्लाह हौज़े कौसर अता फरमा दे। अल्लाह अपना फकर तवक्कल मार्फत अता फरमा दे। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा दे। दीन और दुनिया की भलाई, दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। हमारे जाहिर व बातिन को पाकीज़ा व मुनज़्ज़ा कर। हम बोलें तो अल्लाह तेरी रजा के लिए, हम चलें तो तेरी तेरी नौकरी और चाकरी के लिए। हमारे कदम उठें तो अल्लाह सराते मुस्तकीम की तरफ। हमारे हाथ बढ़ें तो तेरी खिदमत के लिए, दीन इस्लाम की खिदमत के लिए, दीनदारों की खिदमत के लिए। अल्लाह हमसे दीन का काम ले ले। हमें भी, हमारी औलादों को भी, हमारे साथियों को भी, हमारी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह दीन के खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। जो भी खैर और भलाई की दुआएं मांगी सब कबूल फरमा। जो गलतियां खताएं हो गई, कोताहियां सुस्तियां बेअदबियां हो गई, जो गुनाह सरसद हो गए, अल्लाह सब माफ फरमा दे। तौबा करते हैं, कोई आड़ा टेढ़ा बोल मुंह से निकल गया हो, जाने अनजाने में गलती से निकल गया हो, कोई लफ्जिश हो गई, अल्लाह अपने करम से माफ फरमा दे। तौबा करते हैं, सच्ची करके कबूल फरमा। इलाही अंत मकसूदना वरिदा का मतलूबना, आतीना मोहब्बत ज़ातिका व मार्फता सिफातिक। आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप आए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह करे ये इल्म, ये तालीमात आपके लिए नाफे हों। अल्लाह हमें एक अमल बासफ़ा, प्रैक्टिकल, सच्चा सुच्चा मुसलमान मोमिन वली बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।